solve roughly 10-12 questions. Right. So आज हमारी स्टोरी जो स्टार्ट स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. So when we talk about fertilization, the fertilization of your ova and your sperm will get together and fertilization will happen in the ampulla ischemic region के अंदर. So during the copulation, the semen is released in the penis via vagina. In the vagina, that is by insemination. Okay. Motile sperm swim rapidly, passes through the cervix, enter into the uterus, and reach the ampulla region of the fallopian tube. So ये ampulla region जो आपके यहाँ पे होता है, या मैं कहूँगा ampulla isthmus वाला जो हमारे region यहाँ पे होगा, वहां पे आपका हो रहा होता है fertilization. Ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where the fertilization is going to take place. So ये आपका point होगा जहां पे fertilization यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा, right? Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously. अगर ये दोनों साथ में वहां पे पहुंच रहे हैं, तभी यहाँ पे आपको fertilization आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Then only you will find the fertilization will be happening over here, right? This is the reason why not all the copulation lead to fertilization, because you have to make sure that ये सब sync में हो. The process of fusion of your sperm and the ovum is called as a fertilization, something which you will find happening, right? Now there's one thing I want to tell you, all of you should know this. ये हम पहले भी discuss कर चुके हैं. You have the secondary oocyte. So this is my, let's say this is going to be a secondary oocyte over here, right? This is your secondary oocyte. अब secondary oocyte के आसपास आपको मिलेगी यहाँ पे आपकी layer. The outer layer of the secondary oocyte is going to be called as my zona pellucida. Something you know this. So outer layer of the oocyte is going to be your zona pellucida. अब zona pellucida के अलावा you will also have one more outer layer. इसके अलावा आपको एक और outer layer आपको मिलेगी यहाँ पे. You will find one more outer layer of cells, and those outer layer of cells after my zona pellucida is called as your corona radiata. कई बार आपके सामने क्या होगा, समटाइम व्हाट विल हैपन, दे विल आस्क यू डायरेक्टली कि आपके आउटर लेयर आपकी कौन सी आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए. सो zona pellucida is something you will have, that is the one layer you will get to see, but उसके साथ साथ you will also have one more outer layer and that is called as my corona radiata. So you will have a zona pellucida and you have a corona radiata is something that's the outer layer you will find after the zona pellucida in this, right? Center में you have your secondary oocyte तो आपके यहाँ पे, तो याद रखना secondary oocyte के आसपास you will find these two layers will be seen. So this is your secondary oocyte. अच्छा, by the way, I hope सबको मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है. अगर ऐसा कभी कुछ हो ना कि स्क्रीन ना दिखे, then please do let me know. You'll have a secondary oocyte and आपकी दो layers आपको यहाँ पे दिख जाएंगी. Okay, तो sperm basically have to penetrate to the corona radiata and then the zona pellucida and then वो आपको यहाँ पे अंदर जाएगा. Then it will reach over there. Then the fertilization will happen. So आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी दो लेयर आपको मिलती है right outside the secondary oocyte. You should tell them zona pellucida and my corona radiata. Okay, ये हमने यहाँ पे देखा था. This is something we have seen. Now let's see. So these are the layers which I was discussing with you. ये आपकी layers आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. Okay, now during fertilization the sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. तो क्रॉस करेगा आपके corona radiata को and then it will come in contact with the zona pellucida. And that is when you will find जब आपका sperm penetrate करता है egg के अंदर, तब meiotic division 2 आपका यहाँ पे complete होगा. ये बात कभी भी भूलिएगा मत कि यहाँ पे you should know that आपका जो secondary oocyte है, the secondary oocyte is arrested. जो secondary oocyte जो हमारा यहाँ पे है, the secondary oocyte we have, ये आपका अरेस्टेड है. सेकेंडरी oocyte is arrested. Arrested किसके अंदर है? It has been arrested in the, it is arrested in prophase 1, prophase 1 of your meiosis 1. Sorry, this is arrested in the metaphase 2, metaphase 2 of meiosis 2.
सो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 के अंदर ये आपका यहाँ पे अटका हुआ है। अब ये आपका अटका हुआ तब तक रहेगा जब तक फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे हो नहीं रहा। वंस द स्पर्म पेनिट्रेट्स द एग, वंस द स्पर्म पेनिट्रेट्स द सेकेंडरी oocyte, दैट इज व्हेन यू विल फाइंड द meiosis 2 विल गेट कंप्लीटेड। तब आपका meiosis 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा एंड देन यू विल हैव द ova is formed and the second polar body is getting formed। तो ये बात आपको याद रखनी है कि तब तक तो आपका अरेस्टेड है, बट दिस विल अरेस्ट, ये जो आपका meiosis 2 आपका अटका हुआ है ये आपका कंप्लीट तब होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, आपको क्या मिलेगा देखने के लिए स्पर्म के बारे में अगर मैं मेंशन करूं तो स्पर्म का जो हेड होता है, the sperm will have the sperm head, and the sperm head you will have, so let's say this is my sperm, right? Ignore the drawing right now. So you'll have a sperm head, और sperm head के ऊपर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, so you'll have acrosomes over there, you'll have your enzymes acrosomes। अब sperm head के ऊपर you'll have a lipid layer, so these are the acrosomes। Acrosomes is nothing but my bag of enzymes। acrosome के अंदर you'll have a bag of enzyme, और ये enzyme की मदद से आप penetrate कर पाते हो अपने सेकेंडरी oocyte को। तो ये जो आपका स्पर्म हेड होगा, स्पर्म हेड के ऊपर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ लिपिड लेयर। स्पर्म हेड के ऊपर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ लिपिड लेयर। तो यहाँ पे आपको एक लिपिड लेयर आपको मिलती है, यहाँ पे यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ लिपिड लेयर। और ये लिपिड लेयर को निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मान लो कि जब स्पर्म का ट्रैवलिंग करोगे, व्हेन द स्पर्म्स आर ट्रैवलिंग टू द फीमेल ट्रैक, दिस लिपिड लेयर नीड्स टू बी रिमूव। अगर ये लिपिड लेयर रिमूव नहीं की जा रही, देन आपका स्पर्म कभी भी आपका यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा आपके oocyte को। सो लिपिड लेयर को निकालने का जो प्रोसेस होता है, बेसिकली करेगा कौन, इसको निकालने के लिए आपका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा सर्वाइकल म्यूकस। सो याद रखना, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट व्हेन द स्पर्म्स आर पासिंग टू द सर्विक्स, you will have a presence of cervical mucus। there is something called as your cervical mucus, and this cervical mucus is known to remove the lipid layer। ये जो cervical mucus आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये cervical mucus इस lipid layer को यहाँ पे रिमूव करेगा। so this will come and remove this lipid layer। तो जब मेरा cervical mucus lipid layer को रिमूव कर रहा है, so this process is called as your capacitation। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैपेसिटेशन। सो ये टर्म आपके सामने आ सकता है, तो याद रखना, दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इट इज अ रिमूवल ऑफ द लिपिड लेयर व्हिच यू फाइंड एट द टिप ऑफ द स्पर्म। जिसको आप रिमूव करोगे उसके बाद ही आपका स्पर्म एक्टिव होगा। आफ्टर दैट ओनली यू विल फाइंड द स्पर्म विल बिकम एक्टिव टू एक्चुअली डू द फर्टिलाइजेशन। अगर ये रिमूव नहीं किया जाता देन स्पर्म आपका फर्टिलाइज नहीं कर सकता। सो प्लीज याद रखना, व्हाट इज माय कैपेसिटेशन, यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस टर्म। Capacitation is something which will be happening when you will find the lipid layer from the sperm head needs to be removed, and that is getting removed by using the cervical mucus, and that is something called as my capacitation over here। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। This is what you find happening in this। The secretion of acrosome helps in the sperm to enter inside the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। तो ये बात हमने यहाँ पे देख ली। This is something you have understood। एक बार आपका पेनिट्रेशन यहाँ पे हो गया, so this is how the sperm will penetrate and will reach into the and will enter inside। Now this induces the completion of the meiotic division of secondary oocyte। तो यहाँ पे आपका secondary oocyte का meiosis यहाँ पे खत्म होगा, and now you will have your one polar body will be formed। okay, तो आपका secondary oocyte का यहाँ पे meiotic division आपका खत्म होता है, और जब मेरे यहाँ पे sperm fuse करेगा ना, तो ultimately you will have a diploid cell आपको बनेगा यहाँ पे, और जो diploid cell आपका यहाँ पे बन रहा है, that is going to be my zygote। okay, और ये छोटा सा आपको uneven size का जो आपको सेल यहाँ मिला, that is my polar body। so second meiotic division is also unequal and result in a formation of a second polar body and haploid ova। और उस ovum के साथ आपका sperm का nucleus fuse करेगा, and that will lead to a formation of my zygote। so here you are finding the zygote is getting formed। so this is something you have to know। तो ये आपसे सवाल पूछा जाता है जनरली कि आपका second meiotic division आपका कब खत्म होता है, कब कंप्लीट होता है, then you should know after fertilization this will happen। so now fertilized egg is nothing but my zygote जो आपके यहाँ पे बन चुका है। soon the haploid nucleus of the sperm and that of a ovum fuse together to form the diploid zygote जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। right, sex of the baby has been decided at this stage। so यहाँ पे आपका sex of the baby has been decided। कौन सा sperm आके fuse कर रहा है वो डिटरमाइन करता है कि either it's a boy or it's a girl। see, the ova is always going to have like X chromosome। ova जो यहाँ पे होगा, the ova will always have the 22 autosomes plus it will have the X chromosome। that is the feature of the ova। so ovum के अंदर आपको यहाँ पे यही मिलेगा आपको, this is the genotype of the ovum। अब sperm आपका कौन सा फ्यूज करा वो डिटरमाइन करता है कि what will be the sex of the baby। so obviously you know that
if the 22 autosomes plus Y comes and fuse, then that will be a male. If the sperm which is going to be having your autosomes plus X, then that will be the female. So it depends that what kind of sperm is going to fuse, that determines what kind of sex of the child is going to be over there. So that is something you are already familiar with. The chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is going to be XY. Okay. So दो type के sperm बनाए जाते हैं. 50% sperms in the males are going to be like your Y sperm and remaining 50% sperms are going to be like my X sperms. These are the things you have to know. Now quickly answer this question so we can move ahead. During fertilization, the sperm comes in contact with which layer of the ovum? कौन से layer के साथ sperm यहाँ पे आपका contact करेगा during the fertilization, right? During fertilization, which layer it will come in contact with? So your answer you can answer in the chat. Let's do this quickly. The answer will be zona pellucida over here. So it will come in contact with the zona pellucida and then the fertilization will initiate over there. Okay? So that is going to be the zona pellucida. So during fertilization, the sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. Now let's talk about my implantation. अब आप यहाँ पे ये याद रखना कि आपका zygote बन चुका है. Now once the zygote is formed, so now you have a zygote which has been formed over here. So now you have a zygote जो आपका यहाँ पे बन चुका है. अब zygote के साथ आपके यहाँ पे क्या होगा? So now this zygote will undergo the cleavage. So this zygote will undergo cleavage. तो cleavage जब यहाँ पे होगा, so what will happen? बीच में आपके cells का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा. एक सेल थे, दो सेल बन गए, दो सेल्स अब चार सेल आपके बनेंगे आपके यहाँ पे. दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग. तो यहाँ पे आपका डिवीजन जो आपका हो रहा होता है ना यहाँ पे zygote के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज योर क्लीवेज. दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर क्लीवेज. सो क्लीवेज आपके यहाँ पे होता जाएगा एंड यू विल फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स इनसाइड द zygote विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर हियर. सो नंबर ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे. सो यू विल फाइंड इन अ मैटर ऑफ सम टाइम द नंबर ऑफ सेल विल इंक्रीज, विल बिकम मच मोर इन नंबर. राइट. अब जितने भी सेल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, वॉट एवर द सेल्स यू आर फाइंडिंग इन द सेंटर, वॉट एवर सेल्स यू आर फाइंडिंग इन द सेंटर, दिस सेल्स ओवर देयर are called as this cells over there will be called as your blastomere. The cells over there are called as my blastomere. So these are the cells which are called as my blastomere. ठीक है. सो जो भी आपको सेल्स आपका सेंटर में आपको मिले हैं देखने के, these are called as my blastomeres. ये बात याद रखना, this is a very important term. Okay. And now you will find the cells will just keep on adding over here. और जब आपका 8 से 16 सेल्स आपके बन जाते हैं ना, या मैं कहूंगा when you have 8 to 16 blastomere, उस स्टेट को हम बोलते हैं यहाँ पे as a morula. So when you have a 8 to 16 cell, you call them as a morula. Something we can have a look at that later. So यहाँ से आपका zygote आपके यहाँ पे डिवाइड करना चालू करेगा and you will find the number of cell will just keep on increasing over there and you call them as a blastomere. एक और बात याद रखना, outer layer, you will have the outer layer in this. So your zygote जो आपका यहाँ पे है, this will now have the outer layer. कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे एक outer layer आपको मिलेगी यहाँ पे, and that outer layer is called as my trophoblast. That outer layer here is called as my trophoblast. ये भी याद रखना, ये भी आपका बनते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे, right? So now this will just keep on happening. So now let's see some of the pictures over here. The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called as a cleavage. So the division आपको हो रहा है, हम कह रहे हैं यहाँ पे as a cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called as my blastomere. Something I've just told you that. So this will just keep on happening. इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा और आपके यहाँ पे blastomere आपके यहाँ पे बनते जाएंगे. So you will find this. After this, what you find happening, you will find implantation will happen. अब implantation होने के पहले एक चीज बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि आपके जो cells हैं, let me just show you this thing over here itself. You are finding you have an outer layer, आपके बीच में blastomere है. अब ये डिवीजन आपका होता जाएगा और एक टाइम के बाद आप नंबर ऑफ सेल आप काउंट नहीं कर सकते, राइट? याद रखना 8 से 16 सेल जो आपके यहाँ पे होता है, 8 से 16 सेल स्टेज जो आपके यहाँ पे होगा, सेल स्टेज जो आपके यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज मोरुला. ये बात आपने पढ़ रखी है, सो यू नो दिस थिंग, दैट इज कॉल्ड एज मोरुला. बट नाउ व्हाट विल हैपन, वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो कि आपके जो सारे सेल्स होते हैं ना, आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम दे विल गेट accumulated in one specific area. ये सारे सेल हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में आके इकट्ठा हो जाएंगे. So all these cells will accumulate in a small particular area में जाके ये अपने इकट्ठा हो जाता है. और जब मेरे सेल्स यहाँ पे इकट्ठा और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाके, this over here is called as my inner cell mass. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a ICM, inner cell mass.
तो आपके कुछ सेल्स आपके यहाँ पे जाके सारे सेल्स आपके ब्लास्टोमेर सारे एक कॉर्नर में जाके आपके इकट्ठा हो गए, यू कॉल देम इनर सेल मास। और जो बाकी की जो आपके यहाँ पे स्पेस रह गई, द स्पेस, द वेकेंट स्पेस यू हैव, द वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड एज माय ब्लास्टोसेल। vacant space is called as my blastocell. तो ये बात रखना, you'll have an inner cell mass and your blastocell is been formed over here. आउटर लेयर तो आपको वैसे ही मिलेगी, जो मैंने आपको बताया था आउटर लेयर आपकी यहाँ पे जो है ट्रोब्लास्ट सेल, वो तो आपको यहाँ पे वैसे ही मिल जाएगा। यू विल नेवर, दिस विल बी ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। सो ट्रोब्लास्ट तो आपके यहाँ पे मिलनी ही है, राइट। एंड यू विल फाइंड, ये जो मेरा स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे, यू कैन कॉल इट एज अ ब्लास्टुला। दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कैन बी कॉल्ड एज माय ब्लास्टुला। और अब ये ब्लास्टुला जो आपके सामने यहाँ पे बन चुका है, नाउ इट विल पेनिट्रेट इनसाइड द एंडोमेट्रियम, और अब हम इसका करेंगे यहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन। तो आपको कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, दैट यू विल हैव अ ब्लास्टोसेल, इट्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ब्लास्टोसेल इज माय फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इनर सेल मास आपका वो एरिया है, इनर सेल मास आपका वो पार्ट है आपके ब्लास्टोमेयर का, या वो आपका सेगमेंट है जहां से आपका एम्ब्रियो बनेगा, जहां से आपका पूरा आपने एम्ब्रियो बनाना है। यहां से आपका पूरा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बनेगा, एंड देन इट विल गिव राइज टू द कंप्लीट एम्ब्रियो। तो ये आपको इतनी बात इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ लेट्स सी, सो नाउ यू विल फाइंड द इम्प्लांटेशन विल हैपन। इम्प्लांटेशन अभी आपको यहाँ पे करना है, जो आपका होगा आपका एंडोमेट्रियम के अंदर। ओके, सो समथिंग आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि इम्प्लांटेशन हमेशा होना चाहिए आपके एंडोमेट्रियम के अंदर ही। अगर वो कहीं और हो रहा है देन उसे हम कहते हैं वहां पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड दैट कैन लीड टू अ मिसकैरेज। सो यू हैव अ फर्टिलाइज्ड एग, 2 cell stage, 8 cell stage, you call them 8 से 16 cell stage को हम बोलते हैं आप as a morula. You have a 16 cells. Now this will just keep on happening. The morula continues to divide, transform into blastocyst as it moves further into the uterus. Then you have a inner cell mass आपका बनेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे inner cell mass आपका यहाँ पे बन चुका है, and now it will get itself penetrated inside the endometrium. ठीक है, इसको हम इवन कहते हैं ब्लास्टुला, या इवन हम इसे बोल सकते हैं आप एज अ ब्लास्टोसिस्ट भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ये खाली जो जगह आपको यहाँ पे दिख रही है, खाली जगह आपकी यहाँ पे जो, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्लास्टोसेल, दैट इज कॉल्ड एज माय ब्लास्टोसेल ओवर हियर। सो दीज आर द थिंग्स यू विल फाइंड हैपनिंग। ये जो मैंने आपको मेंशन किया वही सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये आउटर लेयर, इनर सेल मास, राइट। ये इनर सेल मास ही आपका पूरा पूरा आपको यहाँ पे एम्ब्रियो बन के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्रिन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जो आपका पूरा यूट्रिन सेल डिवाइड करेगा, उसको पूरा के पूरा आपका यहाँ पे वो एनवेल्प कर लेगा। अब एक चीज याद रखना, योर let's read this thing first of all. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation that leads to the pregnancy. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि pregnancy यहाँ पे successfully आपके यहाँ पे हो चुकी है। Now what happens here now that you have a trophoblast cells. Your trophoblast cells will have a finger-like projections. Trophoblast cells करते हैं आपका यहाँ पे, they will form the finger-like projection, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे chorionic villi, और उसकी मदद से हम बनाएंगे हमारे यहाँ पे placenta. So let's see that. पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट टेस्ट यहाँ पे रन कर लेते हैं। एम्ब्रियो विद द 8 to 16 ब्लास्टोमेर इज कॉल्ड एज व्हाट? जल्दी से आंसर करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। क्विकली आंसर दिस। एम्ब्रियो का हमारा 8 से 16 सेल स्टेज के अंदर है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला, ओवम, नन ऑफ द अबव। वी आर इन द 8 to 16 ब्लास्टोमेर स्टेज। फटाफट लैपटॉप के पास में आके टाइप करिए ABCD एंड देन गो बैक टू योर सीट। It is going to be your morula, beta. It is going to be morula. So 8 से 16 cell stage को हम यहाँ बोलते हैं as a morula. Okay. This is something we have done. This is something we have understood. Now let's understand pregnancy and embryonic development over here. Right. We have some questions. So फटाफट मैं चाहूंगा कि आप लोग इनका सवाल का आंसर दें यहाँ पे. Right. Quickly you answer this. The process by which semen is released from the penis into vagina is called as what? Question 1 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? Class 12th. बताइए। राइट, थैंक यू मिलिट्री स्कूल तलवारा, यू हैव गिवन मी द आंसर। यस, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर इंसेमिनेशन। मोरुला डिवाइड्स एंड कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? मोरुला आपका डिवाइड करता है और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या बनेगा? बन के आपको यहाँ पे क्या मिलेगा अल्टीमेटली? यस, हाँ। अब क्वेश्चन 2 का आंसर आया यहाँ पे, बताओ। मोरुला वाला स्टेज आपका आ गया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपके यहाँ पे कौन सा होता है? राइट, मिलिट्री स्कूल लुधियाना, दैट्स ट्रू, दैट्स गोइंग टू बी माय ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल सही, ट्रू। What induces the change in the zona pellucida layer after the sperm meets the ovum? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपके यहाँ पे जोना पेलुसिडा के अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए आपको मिलते हैं, या मैं कहूंगा उसे पेनिट्रेट कौन करता है आपको वहां पे? राइट, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ माय एक्रोसोम। बिल्कुल सही,
आपके एक्रोसोम से जो सिक्रेशन आपके यहाँ पे आ रहा होगा, उसकी वजह से आपके यहाँ पे ओवा के अंदर आपके यहाँ पे चेंजेस आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। The process of fusion of sperm and egg is called as what? That is a simple answer. Let's not waste time on that. That's your fertilization. ठीक है. Okay, मुझे बताइए यहाँ पे. Your trophoblast, inner cell mass are characteristic feature of what? Blastula, morula, blastocyst and sperm. Now both the answers can hold true. ये आपको blastocyst में भी आप ये term इस्तेमाल कर सकते हो. You can also use the same term for blastula as well. So A भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा. You can also have D as well. अब क्योंकि आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट के टर्म को यहाँ पे फॉलो करती है, सो दैट्स व्हाई वी कैन गो विद देयर ऑप्शन डी. So these are the features you will find in the blastocyst. Okay, now let's have a look at. अब यहाँ पे implantation आपके यहाँ पे हो चुका है. Implantation होने के बाद you should know one thing. There is a connection which will be formed between the fetus and the mother's body, and that connection is called as my placenta. After implantation, याद रखना, finger-like projection appear on the trophoblastic cells. Trophoblast called as my chorionic villi. और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से आपका बनाया जाता है यहाँ पे आपका प्लेसेंटा. समथिंग वी कैन सी दिस हैपनिंग ओवर हियर. सो दिस, ये जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ, दिस इज समथिंग यू कैन सी, दिस ब्लॉक जो आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड, दैट इज द प्लेसेंटा ओवर हियर. सो प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द मदर्स साइड एंड द फीटल साइड. दे आर सराउंडेड बाय द यूट्रिन टिश्यू एंड द मैटरनल टिश्यू. तो याद रखना, प्लेसेंटा बनाने के लिए दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है. मैटरनल साइड से भी आपके टिश्यूज आपके बनाए जाएंगे और फीटल साइड से भी आपके टिश्यूज आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं. So both of them are involved. So याद रखना, प्लेसेंटा सिर्फ फीटल के साइड से नहीं बनेगा. Your maternal side, fetal side, both of them will get involved in formation of the placenta. Okay. So chorionic villi and the uterine tissue become integrated with each other and jointly form the placenta. So you will find placenta formation will be seen happening. Placenta is structural and functional unit between the developing embryo and the maternal body. So maternal body और fetus को connect यहाँ पे आपका कर रहा है आपका placenta यहाँ पे. Okay. So this is what you will get to see in this. The placenta is connected to embryo through a umbilical cord. Placenta and embryo का जो connection यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं as a umbilical cord, जिसको कट किया जाता है after birth, जिसको हम कट करेंगे, that is the connection between the placenta and the embryo. इसकी मदद से भी it is going to play a role in transport of substance from to and from the embryo की तरफ ट्रांसफर आपको यहाँ पे किया जाएगा, जिसको आप कट करते हो at the time of the parturition. Okay. Now placenta also act as endocrine tissue and produce several hormones. अब एक काम करते हैं, we'll use the last 15 minutes to solve some questions. So इसको हम ये स्लाइड को हम देख लेते हैं and then let's solve some questions first of all. कौन से हार्मोन आपके यहाँ पे आ रहे हैं? You have a human chorionic gonadotropin, ये आपका आ रहा है प्लेसेंटा से. Human placental lactogen. Now let me tell you one thing. Human chorionic gonadotropin is also used as an indicator of pregnancy. ये बात आप याद रख लेना, that this hormone is also used as an indicator of pregnancy. और ये हार्मोन कर क्या होता है? ये हार्मोन जब आपका आ रहा है ना प्लेसेंटा से, this hormone will sustain the corpus luteum. ये हार्मोन का काम होता है, ये जाके बोलेगा to maintain the corpus luteum. It hormone will come and it will maintain the corpus luteum. तो corpus luteum को मेंटेन करने का काम आपका यहाँ पे होता है, आपके यहाँ पे human chorionic gonadotropin का. This will come and maintain the corpus luteum, ताकि आपका प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन आपका मेंटेन रहे, और दैट विल इवेंचुअली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द नंबर ऑफ अदर फीचर्स इन द फीमेल बॉडी. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, दैट इज समथिंग डन बाय माय एचसीजी. इसके साथ साथ वी हैव एचपीएल, दैट्स माय ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. दिस विल प्ले द रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट आपको यहाँ पे होता है, ताकि पोस्ट बर्थ ऑफ द चाइल्ड दे कैन बी यूज्ड फॉर द लैक्टेटिंग पीरियड के लिए. So you should know that human placental lactogen will play a role in the development of the mammary glands during the course of the pregnancy. Then we have the estrogen भी आपके यहाँ पे आ रहा है, progesterone भी आपके यहाँ पे आ रहा है. So you have number of hormone coming over here. In the later phase of the pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. Pregnancy के last stage के ऊपर आके relaxin hormone आपका आएगा ovary से, और ये hormone क्या करता है? It will do the dilation of the cervix. Cervix और vagina के region को birth canal जिसे हम बोलते हैं वहाँ पे, उसको dilate कराएगा, so that it actually helps in the easy passage of the child. So relaxin will dilate the birth canal and that will promote the easy passage of the child over there, right? That during the parturition. तो ये सारे hormones आपको याद रखने हैं, and know that endocrine secretion आपका काफी अच्छा है यहाँ पे from the placenta. This will be happening during the pregnancy. Okay. Now let's do one thing. These are the things I've already told you this. ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं. Now we'll jump on to, these are the other hormones you can talk which will be seen during the pregnancy.
कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे भी आपको मिलेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. विल फाइंड देम इन अ वेरी हाई अमाउंट इन द मैटरनल ब्लड के अंदर आपको मिल जाएगा. Now let's solve some questions. We have to solve some questions because that's an important component for us. So let me jump on to, yeah, this is the one thing we have done. Now we can directly jump on the questions. अब मुझे इसका आंसर आप बताओ यहाँ पे. GnRH और हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन. GnRH जो आपका हार्मोन यहाँ पे होता है, ये आपका आके कहाँ पे एक्ट करेगा? So read the options carefully and then give me the correct answer. GnRH आपका आ रहा है from the hypothalamus. You have to tell me that it will act where and what it will do. Someone has given me the answer. लुधियाना से मुझे यहाँ पे आंसर मिल चुका है. आप लोग भी ट्राई करिए. Yes, GnRH, which is a hypothalamic hormone, will be coming from the, okay, it will act on anterior pituitary, right? बिल्कुल ये anterior pituitary के ऊपर ये act करेगा and stimulate करेगा वहां से secretion of your LH and FSH, right? So option B बनेगा यहाँ पे ऐसा correct answer. ये anterior pituitary को जाके यहाँ पे target करेगा और उसे बोलेगा कि वो रिलीज करे अपने यहाँ पे एलएच और एफएच को यहाँ पे वो रिलीज करे. सो बिल्कुल सी. लुधियाना एंड तलवारा, यू बोथ हैव गिवन मी करेक्ट आंसर. दैट्स योर ऑप्शन बी. गिव द नेम ऑफ द टू हार्मोन सी एंड बी इन द फिगर गिवन बिलो. सो आपको होता है कि ए वाला हार्मोन मेरे यहाँ पे कौन सा और बी वाला हार्मोन मेरे यहाँ पे कौन सा है. ए जाके एक्ट कर रहा है लिडिक सेल्स के ऊपर एंड बी जाके एक्ट कर रहा है विल प्ले अ रोल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, आई हैव रिसीव्ड वन आंसर. बाकी स्कूल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. आसान सवाल ही है. आप बताए ना यहाँ पे कि ए वाला जो मेरा हार्मोन है वो करेगा एक्ट मेरे लिडिक सेल्स के ऊपर. अब लिडिक सेल में मेरा कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? यस, इट इज गोइंग टू बी माय एलएच. एलएच जाके एक्ट करेगा लिडिक सेल्स के ऊपर, राइट? एंड देन लिडिक सेल क्या सीक्रेट करेंगे? दे विल सीक्रेट अ हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय टेस्टोस्टेरोन, जो कि हम यहाँ पे टैग कर सकते हैं एज एंड्रोजन. सो इट विल कम एंड योर एलएच विल एक्ट ऑन लिडिक सेल्स एंड विल सीक्रेट द बी, दैट इज माय एंड्रोजन. सो एंड्रोजन को यहाँ पे आपको यहाँ पे सीक्रेट किया जाएगा. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड कर. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस इन टर्म्स ऑफ माय क्वेश्चन नंबर 47, राइट? अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा आप सबको यहाँ पे कि एफएसएच जो होता है, आपसे पूछा जा सकता है एफएसएच किस पे एक्ट करता है. तो याद रखना एफएसएच विल ऑलवेज एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स. और सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करेंगे उसके जैसे? दे विल रिलीज समथिंग कॉल्ड एज माय एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ये वो वहां पे अपना रिलीज करते हैं. बताइए कौन सी पेयर यहाँ पे इनकरेक्ट है? चूज द इनकरेक्ट पेयर. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस. टेक योर टाइम. आप सब लोग बैठे हो वहां पे. टेक योर टाइम, हैव अ डिस्कशन एंड टेल अस. ओके, मिलिट्री स्कूल लुधियाना ने यहाँ पे आंसर दे दिया. बाकी लोग भी ट्राई करिए. कौन सा यहाँ पे आपको इनकरेक्ट लग रहा है? विच ऑफ देम सीम्स टू बी इनकरेक्ट पेयर? लुधियाना एंड तलवारा हैज आल्सो आंसर्ड ओवर हियर. एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई दिस? बस दो ही स्कूल. चलो देखते हैं. Yes, the answer is going to be your option A. Antrum fluid filled cavity in primary follicle. ये बात आपके यहाँ पे wrong है. That's a wrong statement. क्यों wrong है ये? क्योंकि एंट्रम आपको मिलता है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर. प्राइमरी फॉलिकल में कभी आपको एंट्रम मिलता नहीं है. सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट और ये हमें यहाँ पे ढूंढना था. सो राइट ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज करेक्ट आंसर. बाकी सारे आपके यहाँ पे सही है. टर्शियरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte completes its first meiotic division inside it. बिल्कुल सही. जब टर्शियरी फॉलिकल बनता है तभी मेरा प्राइमरी oocyte अपना पहला meiotic division यहाँ पे खत्म करेगा एंड यू विल फाइंड योर सेकेंडरी oocyte is getting formed. सेकेंडरी oocyte क्या होता है आपका? हैप्लॉइड सेल formed after the first meiotic division. So that's also one thing you should know. ग्राफेन फॉलिकल, मेच्योर टर्शियरी फॉलिकल which ruptures during the ovulation. ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है. ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही नहीं था, जो आपको यहाँ पे ढूंढना था. चलिए, the reproductive cycle in the female primates such as monkeys, apes, human beings is called as what? I want other school also getting involved over here. We have so many schools right now. So बाकी स्कूल भी ट्राई कर सकते हैं. हाँ जी, राइट, बिल्कुल सही. Ludhiana and Talwara again, that's the correct answer. Menstrual cycle is a term I'll be using for the reproductive cycle in the female primates. अच्छा, जो बाकी के स्कूल है मैं काफी स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा. यू जस्ट किसी एक बच्चे को आप बिठा दो लैपटॉप के पास में एंड देन अदर स्टूडेंट्स कैन डिस्कस क्विकली एंड टेल कि हाँ ये आंसर है एंड देन दैट स्टूडेंट कैन टाइप दैट आंसर आफ्टर डिस्कशन विद द स्टूडेंट एज वेल. डू दैट. करिए आप लोग भी ऐसा करिए सो दैट क्वेश्चन सॉल्विंग मैटर करता है बेटा यहाँ पे. इसलिए लेट्स गेट एंगेज इन दिस. अच्छा, सो नाउ यू हैव अ पिक्चर. द डायग्राम शोज द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन. एंडोमेट्रियम में क्या
चेंजेस आपको होते मिलते हैं उसको लेके यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है. सो यू हैव A and a B over here. So you have your A and B. So आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट इन द ग्राफ यू कैन सी थिकनेस आपके एंडोमेट्रियम यहाँ पे आपकी नीचे जा रही है A के अंदर, B के अंदर आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस आपकी वापस आ रही है. सो टेल अस क्या हो रहा है इस ग्राफ के हिसाब से, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस. अगेन लुधियाना एंड तलवारा हैव बीन द गिवन. सोचिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस आपके यहाँ पे नीचे जा रही है. That means it is a phase of the menstruation. That's a phase of the menstruation. And यहाँ पे after ovulation, you are finding the endometrium is actually developing again over here, right? यहाँ पे अगर develop आपका हो रहा है endometrium, तो ये आपका point आपका यहाँ पे आएगा वो आपका ovulation का. So yes, you will have menstruation and ovulation are the two terms you can find coming over here as a correct answer. So A मेरे यहाँ पे menstruation, B मेरे यहाँ पे ovulation. Okay, so that's true. Okay, next. कैपेसिटेशन अकर्स इन, ये मैंने आपको आज ही बताया था, तो मुझे बताइए आप लोग कहां होता है आपका कैपेसिटेशन, वेयर डज यू फाइंड दिस हैपनिंग, वेयर डू यू फाइंड कैपेसिटेशन टेकिंग प्लेस. राइट, ये मैंने आपको बताया था, दैट विल बी हैपनिंग इन माय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हमेशा दैट इज द प्लेस इट विल बी हैपनिंग. और ये करने के लिए सर्वाइकल म्यूकस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces a change in the membrane that blocks the entry of the dash. The secretion of a dash helps the sperm enter inside the cytoplasm. So, जब sperm आका फ्यूज कर रहा है तो वो एक चीज को यहाँ पे अवॉइड कर रहा है, and that is going to be polyspermy. जब sperm आपका फ्यूज करता है zona pellucida के साथ, तो उसके बाद क्या होगा, आपके मेम्ब्रेन के अंदर कोई चेंजेस आपके होंगे जिससे आप क्या करोगे, you will block the entry of the additional sperm. So, additional sperm की आप एंट्री यहाँ पे ब्लॉक करते हो. And you know that कि secretion जो आपके sperm के हेड से आ रहा है, that is a secretion coming from the acrosome. So option C बनेगा यहाँ पे as a correct answer. Right. ठीक है. याद रखना, your only one sperm is going to penetrate, and you are actually your body will always try to avoid the polyspermy. The body will always try to avoid the spermy. Someone has a question, I think. Yes, बेटा बताइए क्या सवाल है आपका. Sangrur has raised their hand. Yes. You can tell us what is your query, Sangrur. Your one of the query can be you cannot see the slides right now, screen right now. That can be one of the query which you have seen coming from your side usually. All right, let's see the next question. ये हम कर चुके हैं. Let's not waste time on this. ये हम कर चुके हैं. Several hormones like HCG, HPL, estrogen and progesterone are produced by. ये सारे हार्मोन आपके कहां से आ रहे होते हैं? Okay, right, that's true. बिल्कुल सही. These all hormones are coming from the placenta. Simple question. आगे बढ़ते हैं. बताइए करेक्ट सीक्वेंस आपके यहाँ पे क्या है? What seems to be a correct sequence over here? The correct sequence of your development will be what? Okay, Ludhiana has given us the answer. True. Option A बनेगा यहाँ पे correct answer. You have a zygote, then zygote will lead to a cleavage, cleavage will lead to a morula, blastula, and then the gastrulation. A gastrula formation will happen. Gastrula बनना मतलब now you have a germ layer. आपका यहाँ पे ectoderm, endoderm, mesoderm आपका यहाँ पे बन चुका है. So this is what you find happening in your this. Signal for parturition originates from. Parturition का signal आपका कहाँ से आ रहा होता है? So you should know that it is coming from. राइट ऑप्शन है बिल्कुल सी आपका यहाँ पे आंसर. बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज अ फुली डेवलप्ड फीटस, दोनों साइड से आपको आ रहा होता है. दैट्स ट्रू. ओके, देन वी हैव, ये बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर oogonia. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है फॉर द oogonia? रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर. Ludhiana being super fast again have given me the answer. बाकी लोग भी करिए यहाँ पे, बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर. सो आप लोग कह रहे हो यहाँ पे दैट ऑप्शन सी इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर यू. आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका oogonia फॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ नहीं हो रहा होता. इट इज ओनली हैपनिंग ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. बिफोर बर्थ इट विल बी हैपनिंग. सो दे आर फॉर्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द फीमेल. दैट्स गोइंग टू बी अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो यस, जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे टाइप किया हुआ या सिलेक्ट किया हुआ, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. ओके, मैच द फॉलोइंग columns over here. So you have this like ABCD यहाँ पे आपके सामने. Now you have to match them.
अगर आपको ये नहीं भी मालूम ना, अगर आपको नैबरकन आपको नहीं भी मालूम, तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो. सी, आई टेल यू, मॉन्स प्यूबिस इज समथिंग विल कम विद योर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एंट्रम विल कम विद योर ग्राफेन फॉलिकल. और जब आपको यहाँ पे ट्रोफ है, एक्टोडर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो एक्टोडर्म अगर आपका यहाँ पे है, तो एक्टोडर्म विल एक्चुअली हेल्प इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन. तो सी के साथ आप यहाँ पे 1 को ज्वाइन कर दो, राइट. सो ए के साथ यहाँ पे आ रहा है आपका 3, बी के साथ यहाँ पे 4 आ रहा है, एंड सी के साथ यहाँ पे 1 आ रहा है. एंड देन इवन इफ यू डोंट नो व्हाट इज माय नैबरकन, समथिंग वी विल डिस्कस सेपरेटली ऑन दिस, which will come with the sperm. So that is why option B over here becomes my correct answer. तो मैच द फॉलोइंग में कई बार ऐसा आपके साथ होगा कि आपको एक टर्म शायद आपके सामने वहां पे आपको समझ ना आए, बट इवन आफ्टर इग्नोरिंग दैट यू कैन स्टिल कम विद द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको बाकी अगर आप मैच करा पा रहे हो, देन यू कैन कम विद द राइट आंसर. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस 4. ध्यान से देखो स्टेटमेंट को एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर. The spermatogonia undergoes division to produce sperms by process of spermatogenesis. You have this 4 statement based on that. बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से आपके यहाँ पे सही है. Okay, once someone has said option B, someone has said option A. So दो आंसर अभी तक मुझे यहाँ पे. कोई और है जिसको कोई और आंसर यहाँ पे होगा? ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करके हमने यहाँ पे लाइक वी हैव टू सी हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. Alright, now let me help you out over here. See, spermatogonia have 46 chromosomes and always undergo meiotic cell division. ये बात आपके यहाँ पे सही नहीं है. स्पर्मेटोगोनिया आपका मियोटिक डिवीजन स्टार्ट नहीं करता, आपका प्राइमरी oocyte करता है. सॉरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका करता है मियोटिक डिवीजन स्टार्ट. स्पर्मेटोगोनिया के अंदर हाँ बिल्कुल होता है आपके 46 क्रोमोसोम्स, बट दे विल नॉट इनिशिएट द मियोटिक डिवीजन. इट इज माय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो आपका स्टार्ट करेगा. तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो आप मुझे कह रहे हो कि ये सही है, ये तो आपके यहाँ पे हो गया आपका गलत. दैट बिकम्स अ रॉन्ग वन, राइट. देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, ये बात भी आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, बिकॉज ये करते अपना यहाँ पे मियोटिक डिवीजन, ये माइटोटिक डिवीजन अपने यहाँ पे नहीं करेंगे. सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल नॉट डू द माइटोटिक डिवीजन, वो अपना करेगा मियोसिस यहाँ से स्टार्ट करेगा. सो ये भी आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गया. ओके. Secondary spermatocyte have 23 chromosomes and undergoes second meiotic division. ये बात आपके यहाँ पे सही है. जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका बनता है प्राइमरी में से, वो आपका कब बना था? आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. तो जब मेरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करेगा मेरा सेकंड मियोटिक डिवीजन, वो आपका करेगा लाइक इट विल अंडरटेक द सेकंड मियोटिक डिवीजन, एंड जब वो कर रहा होगा तो उसके पास होंगे वहां पे 23 क्रोमोसोम्स. तो ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. सो दिस स्टेटमेंट ओवर हियर बिकम्स माय ट्रू स्टेटमेंट. फोर्थ आपके यहाँ पे क्या है? स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड. ये ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है. स्पर्मेटिड विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, सो दैट इज व्हाई दिस आल्सो बिकम्स माय फॉल्स स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा. यू हैव टू लुक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड देन यू कैन कम विद द करेक्ट आंसर. सो यस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है. बाकी चीजें आपके यहाँ पे सही नहीं है, right? Remaining other things are not true. So I hope ये पता चल गया आप सबको यहाँ पे. That is why you will find option C बनेगा यहाँ पे as a correct answer. ठीक है. So these are the few questions we have solved. यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे questions हमने यहाँ पे solve किए, and I want all of you to remember, I want all of you to solve as many as statement based questions, because जब आप statement based question solve करते हो तब आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, आप रिवाइज भी कर रहे हो. आप उन स्टेटमेंट को भी आप याद कर रहे हो वापस से कि इसमें ये होता है और इसमें ये नहीं होता. So I would strongly recommend to solve as many as statement-based questions for this and make sure you have a grip on the topic, right? तो ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली. These are the few things we have seen over here. These are the few things you have understood and seen, right? ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आ रही हैं. I would strongly suggest to read all those things which you have done in the today's class. HPL, HCG, relaxin के roles क्या होते हैं? Make sure you remember all those roles. We have to also please know that these are all the hormones which will increase in the maternal side: cortisol, prolactin, थायरोक्सिन. कॉर्टिसोल का एक आपका काम यहाँ पे ये भी होता है कि कॉर्टिसोल विल प्रमोट आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन. दिस वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि जो फीटल के साइड पे जो आपका एनर्जी का सोर्स होगा वो आपका ग्लूकोज ही होगा. फीटल के साइड पे जो एनर्जी का सोर्स होता है वो आपका हमेशा वहां पे ग्लूकोज होता है. और ग्लूकोज बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ कॉर्टिसोल. लाइक कॉर्टिसोल आपके यहाँ पे मदद करता है. सो
इफ आई हैव टू टेल यू दिस थिंग, तो याद रखना कॉर्टिसोल जो आपका हार्मोन होगा, दिस एक्चुअली promotes your glyconeogenesis. दैट मीन्स ये क्या करेगा, ये आके बोलेगा आपके अमाइनो एसिड जो आपके बॉडी में होंगे ना, अमाइनो एसिड आपके हो गए, ये आपके जो फैट्स हो गए, राइट, एंड फैट्स, इनको वो कन्वर्ट कराएगा इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट. सॉरी, देयर इज वन थिंग आई, gluconeogenesis, this will be called as my gluconeogenesis. Gluconeogenesis, जहां पे आप कह रहे हो आप फैट्स और अपने अमाइनो एसिड को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो, या कन्वर्टिंग देम इनटू योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, you are going to convert them into your glucose molecules. तो ये आपका किया जाता है. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ माय कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल ये करता है इसलिए ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज किया जाके फॉर द फीटल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके. सो ये बात आपने याद रखनी है, दैट इज हाउ द कॉर्टिसोल इज गोइंग टू प्ले अ रोल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. And this is also something you have to know, that this is known to convert my amino acid and glucofat molecules into glucose, and that is how the amount of glucose is going to increase. याद रखना कॉर्टिसोल को मेवन कहते हैं आप एज अ स्ट्रेस हार्मोन. सो स्ट्रेस के टाइम पे भी आपकी बॉडी में इसका नंबर इंक्रीज होता है, एंड इट मेक्स सेंस. जब आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में है तो आपको चाहिए ग्लूकोज इस्तेमाल करने के लिए, तो वो टाइम पे आपका कॉर्टिसोल आएगा और आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ताकि उस स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर आप अपना you can take your decisions, you can do your things. So cortisol is something which is also called as my stress hormone, but pregnancy के time पे it will have a role in ensuring that your glucose molecule is high in the blood, ताकि उसे fetal side इस्तेमाल कर सके as a source of energy. So that is one thing you have to know. So these are the few things we have completed आज के class के अंदर. This is what we have done. This is what we have covered. कल हम लोग जब वापस मिलेंगे, so my idea will be again to make you solve around like 15 questions. Try to make you solve around 15 questions again, and hopefully to complete the chapter as well. कल के पोर्शन में आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, and we can solve around 15 odd questions, 15-20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहोगे, 15 करने 20 करने, you can write in the chat. 15 करने, 20 करने, 25 करने, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके साइड से. If you don't write in the chat, then I will have my number. 15. I was thinking you will say sir कराओ, 25 कराओ, 30 कराओ. All right, ठीक है. We'll keep it to 15 only. Okay. All right, class. So that is what we have done. आज के class में this is what we have covered, and we'll catch you again tomorrow, and we'll cover the remaining part. ठीक है. चलो, thank you so much. Thanks for joining. And if you have any question, you can ask.